Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to study some more rules. A few rules are there which you have read before in the previous lecture, but I'll repeat for your reinforcement. Here, the first rule today, before a noun which is identified by some qualifying phrase. Qualifying phrase is commonly placed after a noun, this particular noun. The purpose of a qualifying phrase is to give you information about this man. When a common noun is defined through a qualifying phrase or through a qualifying, this is a phrase, or through some qualifying clause, then it is not a common noun. It has become specific. So we mention its specificity with the help of article the. Now this van is a common noun, but this common noun has further some elaboration in through this phrase standing at the gate. So we are supposed to place article the. Here pen is a common noun. The black pen is mine. But what is the specificity? It's being black. So we are placing article the before it. This pen is blue. This pen's specificity, it's being blue. So we are placing article the before it. The man in white, this particular information about this man is white. So we place article the. So information, additional information can be in the form of a clause, can be in the form of a phrase, can be in the form of some adjective like blue, like black, or it might be in the form of some preposition phrase that gives us extra information, and because of that extra information, we place article the before it. This is number one. Number second is there, I have written a statement, but in this statement the mistake is of an article. The man, not only man, the man. Why? Because this is an additional information. Who quarreled with me? This is the information. Due to it, we are placing article the before man because that man has some specificity. He is being quarrelsome with me. So article the is there. Then there is another rule before a common noun that represents a whole class. I think we have studied it before. For example, cow is a useful animal. When we say cow is a useful animal, it means the whole race of cow, wherever the cows are, they are useful. The dog is a faithful animal. So every kind of dog in the whole world, wherever the dogs are, they are faithful. So the dog and the cow both represent their complete class. To represent a complete class of some common noun, we can place article the in the beginning of some context. The next rule, before the names of the celestial objects, ajram falki, आसमान पर जितनी भी चीजें हैं, the moon, the earth, the stars. So I have written the moon twice. The moon, the earth, the stars. So sun rises in the east is wrong. The sun rises in the east. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. कि आपके जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले आपने लगाना है सूरज, चांद, तारे जो हैं उनसे पहले आपने आर्टिकल दी लगाना है. द मून, द अर्थ एंड द स्टार्स. तो इसका मतलब ये कि आप इनके साथ आर्टिकल द लगाएंगे. सिंपल अगर आप लिखेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट तो गलत हो जाएगा. क्या होना चाहिए? द सन राइजेस इन द ईस्ट. दूसरे नंबर पे है मून हैज बिकम अ सिंबल ऑफ लव. डेफिनेटली नॉट, गलत हो जाएगा. क्या होगा? द मून हैज बिकम सिंबल ऑफ लव. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है. देखें, अगर आप K2 की बात करेंगे तो उसके साथ दा K2 नहीं लिखना, वो सिंपल आप कराक्रम 2 लिखेंगे, उसके साथ कुछ नहीं. लेकिन अगर वो द चेन ऑफ, असल में जब हम कहते हैं द हिमालयाज तो उसका मतलब होता है द चेन ऑफ हिमालय हिल्स, तो उसको हिमालयाज कहते हो. द कराक्रम्स, द चेन ऑफ कराक्रम रेंज, या आप कह सकते हैं द माउंटेन्स ऑफ कराक्रम. तो इसलिए आपने जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस हैं उनके साथ आर्टिकल दी लगाना है. रिवर्स के साथ, जिस द रावी रिवर आप लिखते हैं, ओशन के साथ, सीज के साथ द इंडियन ओशन, द रेड सी, द ब्लैक सी. उसके अलावा ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसमें वेस्ट इंडीज है, द मालदीव्स, उनके साथ आप यूज करेंगे. ग्रुप ऑफ स्टेट्स है द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम. उसके बाद द ग्रेट बुक्स ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर से मुतल्लिक या मजहब की जो 4 किताबें हैं, ठीक है ना, द होली कुरान, द बाइबल, उनसे पहले आप आर्टिकल दी लगाएंगे. द नेम ऑफ शिप्स, द नेम ऑफ शिप में जैसे द टाइटैनिक है उससे पहले आर्टिकल दी लगाएंगे. डेजर्ट्स हैं
द सहारा, ठीक है, द सहारा डेजर्ट, असल में पूरा नाम है द सहारा डेजर्ट। उसमें अगर आपने बाद में द नहीं भी लिखा तो डेजर्ट, अगर आपने नहीं भी लिखा तो द एक्चुअली फॉर दैट डेजर्ट। अब इन सब के अंदर अगर आप देखें तो कोई ना कोई कॉमन नाउन है, ये जिन सब के साथ आर्टिकल, ये मैंने कल भी आपको बताया था इम्प्लाइड वे से, दोबारा मैं बता रहा हूं कि ये आपके जितने भी नाउन हैं असल में इनसे पहले जो है वो आर्टिकल दी उस नाउन, कॉमन नाउन की वजह से जो इनके अंदर पाया जाता है। असल में जब मैं कहता हूं द हिमालयाज तो इसका मतलब है द हिल्स ऑफ हिमालय, तो वो जो आपने द हिल्स ऑफ हिमालय कहा वो द असल में उस हिल्स के लिए था, लेकिन हम कहते हैं द हिमालयाज। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी बिफोर एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। बिफोर एन एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव के साथ आप इसको लगाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आमतौर पर ये एडजेक्टिव कौन सा होना चाहिए जो क्वालिटी को शो करता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ जब आप इसको लगाएंगे, सच अ कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स अ नाउन फ्रेज विद प्लूरल मीनिंग, यानी कि जिस तरह द रिच, द पुअर, द ब्रेव, तो ये किसका मतलब देंगे? ब्रेव पीपल, रिच पीपल, पुअर पीपल, उसका मतलब देंगे। तो इसके अंदर जो पीपल है वो एलिप्टिकल है, इम्प्लाइड मीनिंग से आप जो है उसको प्लूरल वर्ब जो है देंगे। जैसे यहाँ पे है द रिच आर हैप्पी इन पाकिस्तान, कि अमीर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में खुश हैं। द पुअर आर लुक डाउन अपॉन, जो गरीब हैं उनको हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो द पुअर का मतलब द पुअर पीपल। नंबर नेक्स्ट है बिफोर फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जिसमें ताजमहल आगरा, द पिरामिड्स, द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। एक एग्जांपल आपके सामने, दी ताजमहल ऑफ आगरा इज बट अ टीयर ऑफ शाहजहां, कि ताजमहल आगरा क्या है? शाहजहां का एक आंसू है। पता नहीं इसको मौका मिलता तो क्या क्या बना देता। तो जस्ट आपके लिए है कि आप किसी भी जो है मॉन्यूमेंट के लिए है द मीनार पाकिस्तान, ठीक है ना, द बादशाही मॉस्क, तो इस तरह के आप वर्ड लिखेंगे। बिफोर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्रीज, कल भी आपने पढ़ा था, लेकिन इनके लिए शर्त है, यानी कि अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये एडजेक्टिव लगाए हैं उनके लिए शर्त है कि उसके बाद ऑफ फ्रेज या एवर फ्रेज होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप एक को सबसे ज्यादा जो है वो सुपीरियर बना रहे हैं, उसके लिए आपको प्रेपोजिशन ऑफ जो है वो लगानी पड़ेगी। तो उससे पहले आप आर्टिकल दी लगाएं। बिफोर द ऑर्डिनल, ठीक है ना, नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, द थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह के जितने भी आपके वर्ड हैं उनसे पहले आपने आर्टिकल द लगाना है। उससे पहले आपने जो है 1 2 3 4 से उनके जिनको कार्डिनल नंबर कहते हैं वो इटसेल्फ एक आर्टिकल का स्टेटस रखते हैं, तो इसलिए हम उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन चूंकि ये एडजेक्टिव का स्टेटस रखते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का स्टेटस रखते हैं, तो इसलिए हम इनसे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास द इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। आप द को, आपका जो डेफिनेट आर्टिकल है, कब इस्तेमाल नहीं कर सकते? सबसे पहले प्रॉपर नाउन, यानी लाहौर, नासिर, तैयब, पाकिस्तान, अमेरिका, आप आर्टिकल दी नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। बट व्हेन द प्रॉपर नाउन्स आर पर्टिकुलराइज्ड, अच्छा कब पर्टिकुलराइज्ड होंगे? फॉर एग्जांपल कि आप उनको किसी और के रेफरेंस से करें, मसलन जैसे आपने कहा कि माय फ्रेंड इज द गालिब ऑफ माय क्लास, अब वो गालिब की बात नहीं कर रहा, अब वो अपने दोस्त को गालिब के साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ पर जब आपने कहा तो इसका मतलब ये कि ये जो द है ये किसका मतलब दे रहा है? ये लाइक का मतलब दे रहा है। आपने कहा कि माय फ्रेंड इज द गालिब ऑफ माय क्लास, कि मेरा दोस्त जो है वो मेरी क्लास का गालिब है, से क्या मुराद है? कि गालिब की तरह है। तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन जो है उसको आप किसी कॉमन नाउन की जगह पे लिखते हैं तो वो पर्टिकुलराइज हो जाता है, तो आप आर्टिकल द लिखेंगे, ठीक होगी बात। उसके बाद है बिफोर सच वर्ड्स एज नेचर। अब नेचर से रिलेटेड क्या है? द होल यूनिवर्स एंड द क्रिएटेड थिंग, सोसाइटी, मैनकाइंड, मैन, वुमेन, इनसे पहले आपने आर्टिकल द नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, अब यहां पर देखें कि हमने मैनकाइंड से पहले आर्टिकल दी नहीं लगाया, मैन से पहले नहीं लगाना। वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ नेचर, नेचर से पहले भी नहीं लगाना। सोसाइटी से पहले भी नहीं लगाना, सोसाइटी नीड सच मैन, और आपने मैन से पहले भी नहीं लगाना। तो कुछ चीजें जो कि जनरलाइज कॉन्सेप्ट में होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, कॉस्मिक होती हैं, उनके साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के अंदर आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, टी, ब्रंच, हाई टी, कुछ भी आ जाए, आपने उनके साथ आर्टिकल द नहीं लगाना। डिनर इज एट 8, टी विल बी सर्व्ड आफ्टर लंच, तो अब आप देख लें कि डिनर के साथ नो आर्टिकल, टी के साथ नहीं लगाना, लंच के साथ नहीं लगाना, लेकिन आप इनके साथ लगा सकते हैं आर्टिकल दी when they are followed by some phrase or clause। अब वो जो phrase और clause है वो इनको स्पेसिफाई कर देगी, ठीक है ना। मसलन मील विच शी कुकड, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा इसकी वजह से,
टी यू मेड, वो चाय जो तुमने बनाई, अब आपको आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा। ठीक होगी बात। तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन के तौर पे जो है वो आप यूज करेंगे कि जनरल यूसेज के अंदर जब वो जनरल बात कर रहे हो आपने आर्टिकल दी नहीं लगाना, बट व्हेन दे आर फॉलोड बाय सम फ्रेज और सम क्लॉज व्हिच मेक देम स्पेसिफिक, तो फिर यू आर सपोज टू प्लेस आर्टिकल दी बिफोर देम। नेक्स्ट है कि बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम से पहले लिखेंगे। क्रिकेट, चेस, हॉकी, बॉक्सिंग, जितनी भी गेम्स हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट इनका, अब एक क्रिकेट एक ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हॉकी एक ही है, तो इसलिए आपको दी या ए लगाने की जरूरत नहीं है, तो उनसे पहले आपने आर्टिकल दा नहीं लगाना। फिर बिफोर सम कॉमन नाउन्स, कौन कौन से कॉमन नाउन हैं कि जैसे आपके सामने कॉमन नाउन बन जाता है चर्च, मॉस्क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है, व्हेन दे आर यूज्ड इन कनेक्शन विद देयर प्राइमरी पर्पस। असल में देखें ना, मॉस्क का प्राइमरी पर्पस क्या है? नमाज अदा करना। टेंपल का पर्पस क्या है? वहां पर जाके जो हिंदू इबादत करते हैं। चर्च का पर्पस क्या है? वहां पर जाके ईसाई इबादत करते हैं। हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या है? टू ट्रीट द वुंडेड। इसके अलावा या द इल, उसके बाद जितने भी आपके कॉलेज हैं उनका मकसद क्या है? टू गिव एजुकेशन। तो जब भी कॉन्टेक्स्ट जनरल होगा आप इनके साथ आर्टिकल दी नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, तो जब आप कहते हैं कि द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, कि उनको अस्पताल ले जाया गया, तो अस्पताल ही लेके जाना था और उनको किसी म्यूजियम में थोड़ी लेके जाना था, तो यही द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, कि जो इंजर्ड थे उनको अस्पताल ले जाया गया। नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि आप आर्टिकल दी कहां पर यूज नहीं करेंगे। उसमें है कि बिफोर द कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि जो भी सेंटेंस की सेंस को मुकम्मल करे। आमतौर पे हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए है कॉपुलर वर्ब के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अली इज व्हाट? डॉक्टर। कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए वर्ब ऑफ सेंस के बाद, ही फील्स व्हाट? गुड। कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए किसी न किसी स्टेट वर्ब के बाद, ठीक है ना, ही सीम्स डिजेक्टेड। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए किसी बाज ऑब्जेक्ट के बाद, ही चूज हिम। क्या चूज किया? व्हाट? आपने कहा लीडर, दे चूज हिम लीडर, तो लीडर ने ये चूज की सेंस को जो था वो मुकम्मल किया, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ही वॉज अपॉइंटेड व्हाट? आपने कहा हेडमास्टर। तो उस तरह जब आप इनको एज ए कॉम्प्लीमेंट, जब ये किसी भी सेंस को मुकम्मल करेंगे सेंटेंस की, फिर आप इनके साथ आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, जैसे ईद डे है, ठीक है ना, इस तरह आप कहते हैं मेला चरागा, ठीक है, ईद डे, क्रिसमस, बसंत, तो आप इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर बिफोर द नाउन्स दैट कम आफ्टर द फ्रेजेस लाइक सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, मैनर ऑफ, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, मैनर ऑफ हैं, आपने जब भी इनको यूज, इनके साथ कोई नाउन यूज करें तो आपने उस नाउन के साथ आर्टिकल दी नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे व्हाट काइंड ऑफ जॉब, अब यहाँ पर आ जॉब या दा जॉब नहीं आएगा। इस तरह व्हाट सॉर्ट ऑफ सूप, अब आ सूप या दा सूप नहीं आएगा। इन द सेम वे इन द एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस, किस तरह के? जिस तरह की बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, जो भी आपका सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग है, जिसके ऊपर भी बैठ के आप आते हैं वो आपको पता होगा, उसके साथ बेटा जी आपने जो है वो आर्टिकल दा नहीं लगाना। बाय पोस्ट, ऑन फुट, या कोई जगह, नियरनेस, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, इन एग्नी, इन पेन, तो आपने इनके साथ जो है वो आर्टिकल दा नहीं लगाना, ठीक है ना। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग बाय ट्रेन, he goes to college by bus, I reach there on foot, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा रूल है कि इन फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्रेज जिसमें आपका कोई ट्रांसिटिव वर्ब हो, जिस ये लूज है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, हार्ट, ठीक है, तो जो भी नाउन यहां पर आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, उस ऑब्जेक्ट नाउन के साथ, यानी कि वो नाउन जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है वो एक कॉमन नाउन है, आपने उसके साथ जो है वो कतई तौर पर आर्टिकल दा नहीं लिखना। यानी कि कोई भी ऐसी फ्रेज, कौन सी फ्रेज? कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स, जो ट्रांसिटिव वर्ब लूज ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब दो सवाल पूछता है, व्हाट और हुम का। जब भी ट्रांसिटिव वर्ब होगा वो दो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट या हुम। ही ईट्स व्हाट, आप कहते हैं फूड, ही बीट्स हुम, तो जो भी आपका व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछेगा वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आए तो आपने उसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगाना। डोंट लूज हार्ट बट फेस द चैलेंज। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है बिफोर द कॉमन नाउन्स इन पेयर,
जितने भी कॉमन नाउन आपके पेयर में हैं उनसे पहले जो है वो आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, सिस्टर एंड ब्रदर, साइड बाय साइड, लेफ्ट एंड राइट, डे एंड नाइट, फील्ड एंड फैक्ट्री, बिगनिंग टू एंड, डस्क, डॉन टू डस्क। इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ दी आप नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल आपके सामने कि ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न, तो आप ब्रेड के साथ और बटर के साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द जनरल यूज, जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल यूज में हैं उनके साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, इस तरह ब्रेवरी है, ब्रेवरी इज एप्रिशिएटेड बाय ऑल। जनरल सेंस जब भी आप इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की देंगे तो इनके साथ आर्टिकल नहीं आपका आएगा। इस तरह ही आपका बिफोर द मटीरियल नाउन्स इन द जनरल सेंस, मटीरियल नाउन जितने भी आपके जनरल सेंस में होंगे उनके साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे वेजिटेबल इज बेटर देन मीट, वाटर कीप्स इट्स लेवल, एयर इज एवरीवेयर। यानी कि जनरल सेंस की बात करें, उनके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें, जनरल फंक्शन की बात करें तो फिर आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लेकिन आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन हैं, इफ दे आर फॉलोड बाय सम फ्रेज और दे आर फॉलोड बाय सम डिपेंडेंट क्लॉज व्हिच टेल देयर क्वालिटी, तो फिर आर्टिकल दी जो है वो मैंडेटरी है। मिसाल के तौर पे अब आप कह रहे हैं दी ऑनेस्टी ऑफ अहमद, अब ऑफ अहमद की वजह से आपने आर्टिकल दी लगाया। दी वाटर यू ड्रैंक, ये आपकी क्लॉज है, विच यू ड्रैंक यू ड्रैंक, तो इसका मतलब आपने दी लगाया। द मिल्क ऑफ काउ, तो इस तरह दी ऑनेस्टी ऑफ अहमद वाज प्रेज्ड बाय ऑल, तो इसका मतलब अब हम जनरल ऑनेस्टी की नहीं बल्कि अहमद की ऑनेस्टी की बात करें, स्पेसिफिक हो गई तो हमने स्पेसिफायर दी लगा दिया। The water you drank was contaminated. We are not talking of water in general. जो स्पेसिफिक वाटर है हमने उसके हवाले से बात करनी है, तो वो वाटर स्पेसिफिक क्यों हो गया? जो उसने पिया था। अब जनरल मिल्क की बात नहीं हो रही, किस मिल्क की बात हो रही है? जो काउ से लिया गया था, तो इस सिलसिले में हम आर्टिकल द लगाएंगे। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स हमने जो है वो आपके जितने भी ये रूल्स थे आर्टिकल के उनको डिस्कस किया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इनकी एक्सरसाइज होगी, प्रैक्टिस होगी और आपके वर्ड्स जो हैं नेक्स्ट 20 उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।